Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, good morning and assalamu alaikum. Rabbi zidni ilma. Hope you will be fine and will be waiting for reopening of Islamia College Peshawar, and hopefully today we will notify that it will be open on 18th January 2021, the new year. Our today lecture is about the equation of motions with the uniform acceleration and laws of motion. First law, Newton first law of motion, Newton second law of motion, Newton third law of motion with examples. प्यारे तलबा, आज के इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है जो पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ चुके हैं। स्पीड वाज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। So, whenever a body is moving with initial velocity vi and after some time its velocity becomes vf and acceleration is constant, then you see the equation of motion. For that, if you want to calculate the final velocity of a body, then vf is equal to vi plus at. That is first equation of motion. Vf is equal to vi plus at. If you take a free fall motion, free fall means that is under gravity. So, Vf is equal to Vi plus minus Gt, plus minus Gt, here it is plus, it can be minus also. If body is thrown upward, then it will be minus. If the body is coming downward, it will be plus. So, second equation of motion, S is equal to Vit plus half At square. S is equal to Vit plus half At square, or you can say H is equal to Vit plus minus half Gt square. H is equal to Vit plus minus half Gt square, depending whether the motion is upward or downward. And next, third equation of motion is 2as is equal to Vf square minus Vi square. A is acceleration, S is distance traveled, Vf is the final velocity, Vi is the initial velocity. And for free fall motion, that will be plus minus 2gh. Plus minus 2gh is equal to Vf square minus Vi square, plus minus 2gh is equal to Vf square minus Vi square. This is the third. However, if the body is moving with a constant velocity, then generally if you want to find a distance, S is equal to Vt. Whenever a body is traveling with a constant velocity, then distance travel will be found by using formula S is equal to Vt. These equations are for uniformly accelerated motion. These equations are for uniformly accelerated motion. Now, if you want to find the displacement in the nth second, first second, second second, third second, fourth second, meaning that, then St is equal to Vi plus a by 2, 2t minus 1, a by 2, 2t minus 1. That formula is not included in your text, but however, if you find to calculate in every second the distance traveled, you can use this formula. So, St is equal to Vi plus a by 2, 2t minus 1. पहले सेकंड में कितना है, तो S1 is equal to Vi plus a by 2 और 2 multiplied by 1 minus 1. दूसरे सेकंड में कितना है, S2 is equal to Vi plus a by 2, 2 और t की जगह 2 लगा दो, 2 multiplied by 2, 4 minus 1, तो ये आ जाएगा, इससे 3 आ जाएगा। इस तरह हर सेकंड में आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो है ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं सक्सेसिव सेकंड्स में। नाउ कम टू द MCQs ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जो MCQs है वो, a body travels a distance, a body travels a distance equal to x is equal to 20at plus 10bt square, where a and b are constant. The initial velocity and acceleration of a body in order will be,
ये एक इक्वेशन आपको दिया गया है जो कि 2080 प्लस 10bt स्क्वायर के बराबर है। ए बी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। आपसे कहा गया है कि ये जो बॉडी जा रही है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और इसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंपेरिजन कर लो, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये देख रहे हो। तो वी आई की जगह यहाँ पर क्या आ गया है, 20a आ गया है। क्या आ गया है, 20a। देखो टी अपनी जगह पे, तो वी आई की जगह, तो वी आई क्या हो गया, 20a मीटर पर सेकेंड, 20a मीटर पर सेकेंड। और ए क्या आ जाएगी, ये देखो हाफ ए टी स्क्वायर है, तो हाफ ए की जगह यहाँ पर देख लो क्या आ गया है, 10b आ गया है। तो हाफ ए इज इक्वल टू 10b, हाफ ए इज इक्वल टू 10b। तो इससे क्या आ जाएगी, ये देखो a इज इक्वल टू 20b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 20a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी और 20b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। Now, a body is dropped from a 19-meter high apartment. Its impact velocity with the ground is, ये देखो एक बॉडी है एक हाई बिल्डिंग से जो कि 19.6 मीटर का अपार्टमेंट है उससे गिरा दिया गया है। तो जो ही ज़मीन को टच करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको पता है कि वी आई ज़ीरो है, तो आपको ये मालूम है कि 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। उससे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, v is equal to 2gh, v is equal to 2gh, to 9.8, 19.6, 2 multiplied by 9.8 is 19.6, so 19.6 multiplied by 19.6, your answer will be 19.6 meter per second, 19.6 meter per second. So that will be the answer with you people. Now come to Newtonian laws of motion. Newton was the reputed physicist who presented many laws. Among these laws, 3 laws of motions are of vital importance. सर इसाक न्यूटन जो था वो एक reputed मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट था, और उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बड़े बड़े हैं, जो कि स्मॉलर वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए 3 लॉज प्रेजेंट किए, जिसको आजकल हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। सर Isaac Newton, a reputed mathematician and a scientist, gave the explanation of motions with relatively smaller speed compared to the speed of light. Relative का लफ्ज़ जब आता है तो speed of light के साथ comparison होती है। His idea was extended by Einstein, leading to special theory of relativity, which deals motion with higher velocity comparable to the speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. जहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो कि हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं तो न्यूटनियन लॉज ऑफ मोशन फेल हो गए उसको एक्सप्लेन करने के। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या आ गया, आइंस्टाइन आ गया, और आइंस्टाइन ने ऐसे मोशन को एक्सप्लेन किया। और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो बहुत ही मशहूर है और उसकी बहुत ज़्यादा आजकल एप्लीकेशंस है। सो न्यूटन्स डिस्क्राइब सम लॉज ऑफ मोशन that fits well to our daily life motion. These laws were named Newton laws of motion. इन laws को न्यूटन laws of motion का नाम दे दिया गया। अब हम आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच वी आल्सो कॉल लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देखो ये क्या स्टेट करता है, लॉज और प्रिंसिपल के लिए स्टेटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लॉज और स्टेटमेंट। Every body or object in the universe continues its state of rest or of uniform motion in the absence of external force. बैरूनी क़ुव्वत की गैर मौजूदगी में अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर एक बॉडी मुतहर्रिक है तो वो तहरीक में रहेगी और अपना मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन जो है वो जारी रखेगी। सो एवरी बॉडी continues its state of rest or of uniform motion without external force, without using any external force. हर बॉडी अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी ता क़यामत, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी ता क़यामत, बशर्ते कि
इस पे कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे, आप उसको धक्का न दे, तेज़ हवाएं उसको ना उड़ा ले जाएं, पानी उसको उड़ा के न ले जाएं। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें, कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन द टेबल इज़ एट रेस्ट। There are two forces acting on the book, which are weight W of the book directed downward and the support or normal force directed upward. The net force acting will be sigma F is equal to N minus W is equal to 0. MA is equal to 0. Since M can't be 0, so A is 0. That is the mathematical form of the first law of motion. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट को आपको, लीनियर इक्विलिब्रियम स्टेट को आपको डिस्क्राइब करके दे देता है। देखो, अगर कोई किताब है, ये देखो किताब पढ़ा हुआ है इधर, तो इस पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, बुक पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक फोर्स डाउनवर्ड जो वेट कहलाता है और दूसरा जो है इसका सपोर्ट है, नॉर्मल फोर्स जो कि अपवर्ड है। ये किताब पढ़ा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो नेट फोर्स उस पर ज़ीरो है, तो एम ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एम तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो ए जो है वो ज़ीरो होगी। इसका ये मतलब हो गया कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के साथ ये क्या है, ये रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली ये इक्विलिब्रियम के फर्स्ट कंडीशन के साथ कंसिस्टेंट है, लीनियर इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं, या ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं। सो न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, बशर्ते के कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे। बैरूनी क़ुव्वत क्या हो सकती है? बैरूनी क़ुव्वत अर्थक्वेक भी हो सकता है, बैरूनी क़ुव्वत आप भी हो सकते हैं, बैरूनी क़ुव्वत एक्सीडेंट भी हो सकता है, बैरूनी क़ुव्वत तेज़ हवाई भी हो सकते हैं, बैरूनी क़ुव्वत जो है कुछ भी हो सकती है जो उसको डिस्टर्ब करे, तो फिर वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओबे नहीं करेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो ताक़ियामत रेस्ट में रहेगी, बशर्ते कि इस पर कोई बैरूनी अवामिल असर अंदाज ना हो। सो दिस बॉडी will remain at rest till eternity in the absence of external forces like earthquake, winds and many more and many more. ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, जिस तरह कोई बॉडी गिर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद उस पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब बॉडी मोशन में है, अगर इस बॉडी को हम क्या करते हैं, रोकना चाहें, तो वो हमें मुज़ाहमत देती है। क्या देती है? मुज़ाहमत देती है। तो वो जो कोई बॉडी अगर ऑलरेडी मोशन में है, तो वो न्यूटन ने कहा कि वो अपनी मोशन की कंडीशन को बरकरार रखेगा, वो मूवमेंट ही में रहेगा। जिस तरह कोई रेन ड्रॉपलेट गिर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी मोशन में। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वेट और अपवर्ड फोर्स जो एयर ड्रैग है वो बराबर हो जाते हैं, तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आती है, यानी बॉडी रुकती पर नहीं है। अगरचे ड्रैग फोर्स और वेट बराबर होता है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी मोशन में है तो वो अपनी मोशन की हालत को बरकरार रखती हैं, मोशन की हालत को बरकरार। दिस इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल दूसरा देखो, अ रेन ड्रॉपलेट आफ्टर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू मूव डाउन ड्यू टू इनर्शिया with uniform velocity towards earth is, in this case, air drag and weight of the droplet equalizes each other. अभी जो हमने डिस्क्राइब किया आपको कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ डी ड्रैग फोर्स है, डब्ल्यू वेट है, और आपको पता है कि एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ आल्सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली डिस्क्राइब द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम which we call translatory equilibrium or linear equilibrium. So this is first law of motion. It is also called law of inertia. What inertia is? First law of motion को law of inertia भी कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लीनियर इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, वो हम ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये लीनियर इनर्शिया जिसको मास कहते हैं दूसरे अल्फाज में। The property of a body that resists any change in its state of rest or of uniform linear motion is called linear inertia. The property of a body that resists any change in its state of rest or of uniform motion is called linear inertia. For example, एक पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसको उठाने की कोशिश करते हैं, पत्थर कहता है कि मुझे ना उठाओ, वो मुज़ाहमत देता है आपको उठाने के ख़िलाफ़। तो ये मुज़ाहमत
कि पत्थर का ये खूबी कि मुझे ना उठाओ, ये खूबी इनर्शिया कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। अब गाड़ी खड़ी है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, गाड़ी आपको पीछे की जानिब क्या करता है? रेजिस्ट करता है। तो गाड़ी की ये खूबी कि आपको रेजिस्टेंस है कि मुझे मत चलाओ, मुझे अपनी हालत सुकून से डिस्टर्ब ना करो, ये क्या कहलाता है? लीनियर इनर्शिया। इसी तरह अगर कोई बॉडी जा रही है, आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि मुझे ना रोको, और ये न रोकने वाली आदत क्या कहलाती है? लीनियर इनर्शिया कहलाती है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल लीनियर। फॉर एग्जांपल, अ क्रिकेट बॉल हेड, इफ़ यू वांट टू कैच इट, देन it will resist your hand to allow me to go through my own track. इससे ये भी हो सकता है कि आपका हाथ छूट भी सकता है अगर बहुत तेज़ आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे रोकना नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल लीनियर इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इनर्शिया। लॉट ऑफ एग्जांपल, when a bus driver suddenly applies brakes, the passenger of the bus falls forward because of inertia. अगर बस ड्राइवर जो है वो सडनली ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं तो पैसेंजर आगे की जानिब, पैसेंजर का लोअर जो पार्ट होता है वो सीट के साथ या जब खड़ा होता है तो उसके पाँव जो है बॉडी के साथ क्या होते हैं? अचानक रेस्ट में आ जाते हैं, जबकि उसका ऊपर का पोर्शन मोशन जारी रखना चाहता है, क्योंकि न्यूटन लॉ कहता है कि हर बॉडी जो मोशन में होती है तो कहता है कि मुझे मोशन में ही रहने दो, तो वो मोशन जारी रखना चाहिए। इज रिजल्ट फॉल फॉरवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? अपर पोर्शन मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है, ब्रेक लगने के साथ नीचे वाला पोर्शन जो है वो रेस्ट में आ जाता है फ्रेम के साथ, तो इज रिजल्ट यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ inertia. The reason for this is that lower part of a person tries to maintain its state of rest while the upper part of the body wants to continue its state of motion. As a result, he falls forward. This effect will be opposite if the bus suddenly speeds up. अगर बस सडनली स्पीड अप हो जाए तो आप पीछे की जानब गिर जाएंगे, ब्रेक लगाएं तो आप आगे की जानब, सडनली स्पीड अप हो जाएं तो आपके पाँव स्पीड अप हो जाते हैं फ्रेम के साथ, या आपका लोअर पोर्शन जो स्पीड अप हो जाता है फ्रेम के साथ, जबकि अपर पोर्शन जो होता है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। एज रिजल्ट यू फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आप कौन से डायरेक्शन में हो जाते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में वो आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, व्हेन अ फ्रूट ट्री इज़ गिवन अ पुश, जर्क जब उसको दिया जाता है, फ्रूट ट्रीज को जर्क दिया जाता है तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो हिल जाते हैं, जबकि एप्पल वगैरह जो होता है जिसका मास ज़्यादा होता है वो अपनी जगह पे रेस्ट में रहना चाहते हैं। इजी रिजल्ट टहनी में और फ्रूट के दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा हो जाती है, और इसी तरह एप्पल होता है या कोई और चीज़ होता है वो दरख्त से क्या हो जाता है? गिर जाता है। कालीन को जब आप साफ़ करते हैं तो ऊपर नीचे उठाते हैं, क्या होता है? डस्ट अपनी जगह पे रहना चाहता है तो आप कालीन को मूवमेंट देते हैं। एज रिजल्ट डस्ट फ्लाई ऑफ द, ये देखो ये सारी चीज़ें हैं। किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, हैवी और स्मॉलर मास को सेपरेट करने के लिए आप यही इनर्शिया वाला प्रिंसिपल क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लीनियर इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इनर्शिया कहते हैं। लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर विद यू पीपल। अच्छा जी, नाउ कम टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट अ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, दिस लॉ गिव्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स एंड इज स्टेटेड एज, ये क्वांटिटी ऑफ फोर्स आपको देती है कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स एग्जर्ट होता है। दैट गिव्स यू द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज़ क्वांटिटेटिव लॉ। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स वेरीज डायरेक्टली विद द, ठीक है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, sorry, the magnitude of acceleration, the magnitude of acceleration produced by a force varies directly with the magnitude of force and inversely with the mass of the body, and inversely with the mass of the body. किसी बॉडी पे फोर्स लगाए तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन की ये मिकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स की मिकदार की। एक्सेलरेशन की ये मिकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसकी? फोर्स की मिकदार की। यानी जितना आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा फोर्स भी ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। और मास का इन्वर्स रिलेशन है। मास देखो, ए कम होगी अगर मास ज़्यादा है, ए ज़्यादा होगी अगर मास कम है। तो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स वेरीज डायरेक्टली
with the magnitude of force and inversely with the mass of the body. So magnitude of acceleration produced due to force is a direct function of force and inverse function of mass of a body. Now come to the mathematical form of the second law of motion. Second law of motion का mathematical form जो है क्या है? देखो, this law gives the amount of force acting on a body. It is divided into two parts. Magnitude of acceleration is directly proportional to magnitude of force provided that mass is kept constant. फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती हैं उसकी मकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं फोर्स की मकदार की अगर मास कांस्टेंट हो, यानी A इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फोर्स प्रोवाइडेड दैट मास इज़ बीइंग केप्ट कांस्टेंट. दूसरा पार्ट क्या है? Magnitude of acceleration is inversely proportional to the mass of the body, i.e. A is inversely proportional to the mass of the body. मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा. इस हालत में आपको क्या रखना है? फोर्स कांस्टेंट रखना है. फोर्स जो होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. फोर्स मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट. फोर्स F should be kept constant. यानी फोर्स को आपने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है. ये वो हालत होगी जब आपने फोर्स को कांस्टेंट रखना होता है. A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M तब होगी अगर फोर्स को A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m एंड A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M. ये इस तरह होता है अगर फोर्स कांस्टेंट होता है. अब इन दोनों को कंबाइन करो तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू F/m आ जाएगा और A इज़ इक्वल टू K F/m, where K is a constant of proportionality and that will be fit only and only if K is equal to 1. This equation will be valid for constant K is equal to 1. So A is equal to F/m, F is equal to ma. Cross multiplication we get F. So force can be calculated from mass time acceleration. So if you know the mass of the body and acceleration of a body, then you can calculate force easily. So F is equal to ma is the Newton's second law of motion. SI unit of force क्या है? The SI unit of force is Newton. SI unit of force जो है वो क्या है? न्यूटन है, which can be defined as the amount of force that accelerate 1 kg mass by 1 meter per second square is 1 Newton. देखो, अगर मास 1 किलोग्राम हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं. सो इसकी CGS यूनिट जो है वो डाइन है और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है. क्या होता है? 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है. ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कि आपको क्वांटिटी ऑफ फोर्स देता है. थर्ड जो है आपके पास क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या है? दिस लॉ रिलेट्स पेयर ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज. ये पेयर ऑफ फोर्सेस को रिलेट करती हैं बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स. इसकी स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी फोर्स देयर इज इन इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स, और टू एवरी एक्शन देयर इज इन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. हर अमल का रद्द अमल होता है. ये दोनों बाहम मकदार में बराबर होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. हर अमल का रद्द अमल होता है. टू एवरी एक्शन there is an equal but opposite reaction. अमल और रद्द अमल मिकदार में बराबर होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. दिस इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसकी देखो ये दो बॉडी हैं, एक A है ये B है. A B को अपनी तरफ खींचता है तो उसको FAB का नाम, फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करें
तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए एंड बी, तो ए की फोर्स का डायरेक्शन ए की तरफ है अगर ये बॉडीज़ हैं या मासेस हैं, क्योंकि मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक। बी ए को अपनी तरफ खींचता है, तो इफ़ बी ए फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, इस तरह प्रोनाउंसिएट करिए, तो दैट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन दिस ए। तो ए का फोर्स ए की तरफ ही होगा, बी का फोर्स बी की तरफ होगा, तो ए का फोर्स एफ ए बी हो गया ऑन बी और बी का फोर्स एफ बी ए हो गया ऑन ए। So mathematically consider two masses A and B are placed closer to each other. The masses will exert same gravitational force on each other. Suppose if AB is the force exerted by A on B, A on B या B on A, अगर आप कहते हैं उल्टा तरफ से यूजुअली पढ़ा जाता है उल्टी तरफ से, B on A अगर आप कहते हैं तो ये भी आप कह सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम ये करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय B on A, और इफ़ बी ए फोर्स एक्सर्टेड बाय A on B, उल्टे तरफ से अगर आप पढ़े, या अगर आप ये भी कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय B on A, जिस तरह हमने ऊपर कह दिया आपको, डजेंट मैटर, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उसके लिए लिखना होता है। अब मैंने एफ ए बी लिख दिया, तो एफ ए बी यहाँ पर ये देखो मैंने कहा ये फोर्स एफ ए बी, मैंने कहा फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए है, बाय बी ऑन ए, एफ बी ए दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। अगर आप इस तरह उसको यानी जब आप लिखोगे उसको क्लियर करोगे तो बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने ये कह दिया, अगर पहले मैंने आपको ये कह दिया कि एफ ए बी इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एफ ए बी, अगर उसको उल्टा कर ले, यानी इसको आप एंड वाले को पहले भी कह सकते हो और पहले वाले को एंड, लेकिन यहाँ पर आपने एक दफ़ा लिख दिया तो क्लियर हो गया, बस ठीक है। F1 कर दो, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। चलो एफ बी ए फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन बी, ये भी कर सकते हो, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जो मैं करना चाहता हूँ वो क्या होगा, ए है तो एफ ए बी मैंने क्या दिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। अगर ये मासेस हैं तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी विच इज़ डायरेक्ट टुवर्ड्स ए, तो हम इसको इस तरह करेंगे ए ऑन बी, ठीक है। ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, और ये वाला क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। यूजुअली उल्टे तरफ से पढ़ा जाता है, लेकिन आप यहाँ पर जिस तरह लिखते, जिस तरह डायग्राम में बना हुआ है तो उसके मुताबिक मैं उसको करेक्ट करता हूँ, बी ऑन ए। इससे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होती जाएगी और थोड़ा कंफ्यूज होते जाओगे और इंशाल्लाह सोचना शुरू कर दोगे। तो अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, FAB is equal to minus FBA. So action and reaction pair is not formed on a single point or a body, so they can't cancel the effect of each other. एक्शन एक बॉडी की तरफ से होता है और रिएक्शन दूसरे बॉडी की तरफ से होता है, ये एक पॉइंट पे नहीं होते, इसीलिए ये दो फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते, ये कैंसिल नहीं करते, यानी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नेवर कैंसल ईच अदर। एक्शन इज फ्रॉम वन बॉडी एंड रिएक्शन इज फ्रॉम द अदर बॉडी। एक्शन एक बॉडी की तरफ से होता है जबकि रिएक्शन दूसरे बॉडी की तरफ से होता है। इसकी एग्जांपल, द अर्थ अट्रैक्ट्स अ स्टोन टुवर्ड्स इट्स सेंटर विच इज द एक्शन फोर्स, वेयर इज द स्टोन in turns attract the earth towards itself with the same force but in opposite direction, which is the reaction of the stone. Since earth is massive, so it is accelerated towards the stone with a very smaller acceleration, and the stone is less massive, so it has high acceleration towards the earth. So in both cases the product of mass and acceleration will remain the same. मास ऑफ द अर्थ अगरचे ज़्यादा है लेकिन वो स्टोन की तरफ कम एक्सेलरेशन ना होने के बराबर 0.0000 समथिंग से आ रही हैं, जबकि स्टोन का मास जो है वो छोटा है लेकिन इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई छोटा मास, और यहाँ पर बड़ा मास मल्टीप्लाइड बाई छोटा एक्सेलरेशन, तो प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। इसका ये मतलब है
अर्थ स्टोन को अपनी तरफ खींचता है और स्टोन अर्थ को अपनी तरफ खींचता है विद सिमिलर फोर्स। इसी तरह वाइल वॉकिंग on earth we press the earth backward, which is the action force, is a reaction, we move in the forward direction, हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं।